Dear students, today we will discuss geography lesson the changing earth, बदलती पृथ्वी. Then we have to see which are the factors because of those the earth is changing day by day. What are the reasons behind this? Then we have to read some basic reason, and here it is given. First, lithospheric plates. These are plates. That very earth is made up of plates. Either these are lithospherics or tectonic plates. Then here, what is by lithospheric plates? Earth's crust. Crust means that upper part of the earth is broken up into a series of plates. बहुत सी प्लेटों से बना हुआ है, which fit closely together, जो साथ साथ है, are called lithospheric plates or sometimes tectonic plates. These are called. What is the function of those lithospheric plates in changing the earth? Reason. They are constantly in motion. लगातार चलती रहती है, but they are moving very slowly. Just some millimeter they can move in a whole year. Clear? Here these plates are six major lithospheric plates are there, and because of these plates movement, sometime volcano eruption is there, earthquake is there, where there is a seismic zone, plates effect is dominant there than the other area. That's why we have to read lithospheric plates importance in changing earth. Next, movements of these plates results in the development of various landforms on the earth's surface. Very major development has happened in the geography because of these plates. Next, volcanoes. Volcanoes, if we see the very moment of those plates, maybe some extent effective for the very volcanoes. In ज्वालामुखियों की जो कि क्या होता है, volcano is a vent chimney which transfers molten rock known as a magma from depth to the earth's surface. नीचे से निकलने वाला पदार्थ होता है जिसमें एक दरार से आ जाती है पृथ्वी के अंदर, और उसमें से लावा निकलता है और वो ऊपर जाके जो लावा या मैग्मा जो जिसको कहते हैं वो अर्थ सरफेस बना लेता है, जिसके अंदर बहुत से मटेरियल होते हैं. नाउ वी हैव टू रीड दिस from your very textbook and find out what is written and what is worth repeating now. Just it was introduction on my part only. The earth's crust is relatively thin. जो ऊपरी परत है काफी पतली है, and is broken up into series of plates, और बहुत सी श्रृंखलाएं हैं प्लेट की, which fit closely together, जो साथ जुड़ी हुई हैं. They are called lithospheric plates. उनको क्या कहा जाता है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहता है. You will be surprised to know, तुम्हें हैरानी होगी that these plates moved around very slowly. बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं. Just a few millimeter each year. प्रत्येक साल में कुछ ही मिलीमीटर. This is because of the movement of the molten magma. यह किस कारण होता है कि जो लावा है ना, वो द्रवित लावा जिसको बोलते हैं या मैग्मा जो नीचे है पृथ्वी में, उसके कारण होता है. व्हाट इज रीजन बिहाइंड ऑफ बीइंग मूविंग दोज वेरी लिथोस्फेरिक प्लेट्स? बिकॉज ऑफ द मैग्मा which is in the earth deep surface, we can say. Thus it is clear that our planet earth is dynamic in nature, not stagnant one. Dynamic, moving, ever changing, we can say. बदलता रहता है. लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, क्योंकि वो जो प्लेट्स हैं हमेशा गति में होती हैं. लुक एट द वर्ल्ड मैप that is given in this very book. Here, see this. In this
events are given, or that very plates are lined in that very map. Lithospheric plates are given and signs are made to make it clear the very picture. Next thing, the shapes. Look at the world map, the shape and position of the oceans and continents, जो महासागर हैं और जो महाद्वीप हैं, अर्थ मेक ए फैमिलियर पैटर्न, उनका एक बड़ा परिचित सा पैटर्न है. बट डू यू नो दिस पैटर्न हैज इमर्ज्ड आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स. इस पैटर्न को बनने में बहुत लाखों साल लगे हैं. देयर आर 6 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स. दीज आर द अफ्रीकन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स, the North American plate, South American plates. These are lithospheric plates types. Movement of these plates results in development of various landforms. बहुत से ना लैंडफॉर्म बनते हैं इसमें, कहने का मतलब पृथ्वी के आकार बनते हैं. ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी पे, द सरफेस एरिया ऑफ लिथोस्फेरिक्स और टेक्टोनिक प्लेट इज वेरी लार्ज. इनका जो एरिया होता है ऊपर का, धरातल का, वो बहुत लंबा होता है इन कंपैरिजन टू इट्स थिकनेस. और इनकी चौड़ाई कम होती है, मोटाई कम होती है, लेकिन एरिया एक्सटेंसिव होता है, लार्ज होता है. द मोमेंट्स ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स कैन कॉज चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस. इसी के कारण परिवर्तन होते हैं, इन्हीं मोमेंट्स के कारण, इन्हीं गतियों के कारण जो हमारी टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं या जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं. द मार्जिन ऑफ दीज प्लेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो इनका मार्जिन है या अंतराल है, जो अंतर है एक प्रकार से, द मार्जिन ऑफ दीज प्लेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज मोस्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज सच एज वोल्केनोज. वोल्केनो इज कॉल्ड टेक्टोनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी, जो अर्थक्वेक्स, भूकंप, फॉल्टिंग, दरार आना किसी प्रकार का, माउंटेन बिल्डिंग, पर्वतों का बनना, एक्सेट्रा, ऑकर अलोंग विद द मार्जिन ऑफ दीज प्लेट्स. जो इनके बीच में अंतर है या खाली है, जो कुछ उसके अंदर होता है. Many tectonics activities or Earth's movements are divided on the basis of the forces that cause them. और ये टेक्टोनिक्स एक्टिविटी है या पृथ्वी की जो गतियां हैं, आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज, उन शक्तियों के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, दैट कॉज देम, उनसे जो होती है. दीज आर 2 मेन टाइप ऑफ सच फोर्सेज, 2 प्रकार की जो शक्ति है. दीज आर कॉल्ड endogenic and exogenic forces. The forces that originate from interior of the earth are known as endogenic forces. आंतरिक गति पृथ्वी की अंदर से जो नीचे से होती है, not from the very surface. These forces cause movement giving rise to variety of landforms. और इसके कारण गतियां होती हैं और इससे पृथ्वी का आकार बदलता है. These forces can be स्लो और सडन इन देयर मोमेंट. ये स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती हैं, एकदम से इमीडिएटली भी हो सकती है. मोमेंट काज्ड बाय दीज फोर्सेस मे बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. वर्टिकल मीन्स लाइक दिस एट द 90 डिग्री एंड मे बी 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वन. द फोर्स विच ओरिजिनेट्स एंड वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज एक्सोजेनिक्स. जो ऊपर होते हैं पृथ्वी के, द फोर्सेज विच ओरिजिनेट्स, कहने का मतलब जो उत्पन्न होते हैं, एंड वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज एक्सोजेनिक, बाहरी, जिसको आंतरिक ना कहें हम लोग. दीज फोर्सेज कैन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द विदरिंग्स एंड इरोशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म थ्रू डिफरेंट एजेंट्स लाइक रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड, सी वेव्स एटसेट्रा. इट मीन्स हियर डिस्ट्रक्शन, तबाही ड्यू टू वेदरिंग्स एंड इरोजन्स ऑफ, ये जो मर्दा अपरदन होता है या मिट्टी का कटाव होता है लैंडफॉर्म पर, उससे भी कई बार, जैसे कि नदी से, ग्लेशियर हिमानी से, विंड हवा से, सी वेव्स समुद्र की लहरों से, लाइक दैट. दीज मोमेंट्स गिव राइज टू वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. सडन मोमेंट्स आर एक्सपीरियंस्ड थ्रू द इरप्शन ऑफ वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक. And example of sudden movement is eruption of volcano, ज्वालामुखी का फटना, and earthquake and भूकंप का आना, जो जिसको कहेंगे हम लोग volcanoes.
that is the second factor that is very important in changing the land form, or we can say changing earth. Volcano is a vent or chimney which transfer molten rock known as a magma. जिससे क्या होता है कि जो मैग्मा या लावा जो नीचे होता है, जो मोल्टन बड़ा द्रवित मात्रा में होता है, पिघला हुआ होता है, फ्रॉम डेप्थ टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के नीचे से और ऊपरी सतह पे आता है. द मैग्मा दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा, उसको लावा भी बोला जाता है. द पैसेज थ्रू विच इट ट्रेवल्स इज कॉल्ड वेंट, और जिस रास्ते से वो निकलता है उसको वेंट बोला जाता है. इन कोर्स ऑफ टाइम lava and other matter like ash, cinders and gases thrown out of volcanoes accumulate around the opening and form a conical hill or mountain. जो चीज़ें पृथ्वी के नीचे से आती है ना, जो मेटेरियल है, जैसे कि राख है, गैसेस हैं, या जो भी होता है, वो बिल्कुल उस जो वेंट है ना उसके पास नज़दीक इकट्ठा हो जाता है और एक कोण के प्रकार का, मतलब कॉनिकल का मतलब ऊपर सीधा, माउंटेन का या फिर कॉनिकल हिल का या एक पहाड़ी का रूप बना लेता है. द टॉप ऑफ वोल्केनो हैज ए कप शेप्ड और ए फनल शेप्ड डिप्रेशन नॉन एज क्रेटर, और जो उसके ऊपर का हिस्सा है उसको क्रेटर कहा जाता है. वोल्केनो इरप्शन may take place either explosively or quietly. जो ज्वालामुखी का फटना है ना, वो एकदम भी हो सकता है विस्फोट के हिसाब से, और शांत भी हो सकती है धीरे धीरे. एंड एक्सप्लोसिव इरेप्शंस ऑकर्स एट ए पॉइंट, एक ऐसी जगह होता है थ्रू ए नैरो वेंट, बिल्कुल छोटे से छिद्र के हिसाब से. द इरेप्शन मटेरियल एक्यूमुलेट्स अराउंड द वेंट टू फॉर्म ए कॉन शेप्ड हिल. माउंट फ्यूजियामा इन जापान एंड माउंट वेसुवियस इन इटली आर एग्जाम्पल ऑफ सच वेल्केनोज. इस प्रकार की वेल्केनोज के ज्वालामुखी के उदाहरण. क्वाइट इरेप्शन, और जो धीरे धीरे होता है इरेप्शन, लावा ओजिस, लावा बाहर आता रहता है. आउट थ्रू नैरो क्रैक्स, जो दरार होती है इन द अर्थ क्रेस्ट, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसमें. इट स्प्रेड ऑन लार्ज एरिया फॉर्म लायर्स ऑफ लावा सीड्स, इससे लावा सीड्स बनती रहती है, ओरिजेंटली होता है. सम प्लेट्यूज, कुछ पठार एंड प्लेन्स, और जो मैदान है, हैव बीन फॉर्म्ड इन दिस वे, इस प्रकार से बने हुए. द डक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, जो दक्षिण का पठार है भारत का, वो इससे बना हुआ है. एंड द कोलंबियन प्लेट्यू इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में जो कोलंबियन पठार है वो आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन. दिस इज द वेरी स्टार्टिंग or introduction about volcano. Now next types are given: the active volcanoes, dormant volcanoes, the extinct volcanoes. These are active means, it means the volcanoes which are active, जो ज्वालामुखी एक्टिव है, यानी कि लगी हुई है, अभी भी हो रहा है जहाँ पर एक्सप्लोजन. डोरमेंट वोल्केनोज मीन्स जो शांत हो चुकी है वोल्केनो. एंड एक्सटिंक्ट का मतलब जो विलुप्त हो चुकी हैं. क्लियर? देन यू हैव टू रीड दिस वेरी लेसन अप टू earthquake, not earthquake but up to earthquake. Before that you have to read just lithospheric plates and volcanoes, its types also, as well as lithospheric plates and volcanoes types should be also learnt. For today this much lesson is enough. Okay, thank you.